Brownier, Emmett, and Taylor proposed this equation. That's why it is known as BET equation. It is based on some postulates. First one, the adsorbed layer may be polymolecular in thickness. That means in this equation, multi-layer formation is considered. As you know, Langmuir adsorption isotherm is only for monolayer. Next postulate is that Langmuir assumption applies to every layer. Then next, there is dynamic equilibrium between two successive layers. That means that the rate of evaporation from the first layer is equal to rate of condensation, which is nothing but adsorption on the preceding layer. The derivation is based on same kinetic picture as represented by Langmuir. That means here also that area of adsorbent is considered as 1 square centimeter. Condensation forces are the major forces. So these are the postulates of BET equation. Now let us discuss derivation of BET equation. तो दोस्तों ये डायग्राम में ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, तो ये है एडसॉर्बेंट का सरफेस. अब यहाँ पर समझिए θ1 ऐसा सरफेस है जहाँ पर एक मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ है. θ2 ऐसा सरफेस है जहाँ पर दो मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए हैं. θ3 ऐसा सरफेस है जहाँ पर तीन मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए हैं और इस तरह से एडसॉर्प्शन हुआ है. इसका मतलब यह हो गया कि θ1 पर एक मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ है, θ2 पर ट्वाइस θ2 एडसॉर्ब हुआ है, θ3 पर थ्राइस θ3 इतना एडसॉर्प्शन हो चुका है. तो देखिए एडसॉर्प्शन किस तरह से शुरू है. G plus S, it gives GS. That means one gas molecule is adsorbed in a vacant site, that is S. Then on this GS, one again gas molecule get adsorbed to form G2S. Then on this G2S, again one gaseous molecule get adsorbed, there is formation of G3S and so on. तो ऐसी सिचुएशन में K1 को लिखेंगे concentration of GS upon concentration of G into concentration of S. K2 लिखेंगे concentration of G2S upon concentration of GS into concentration of G. K3 लिखेंगे concentration of G3S divided by concentration of G2S into concentration of G, etc. Now concentration of gas is directly proportional to pressure. जहाँ पर कोई molecule adsorb नहीं हुआ है, that is suppose θ0, that is concentration of S. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ GS यानी एक सरफेस जहाँ पर कि एक गैस का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ है, इट इज सपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1. सिमिलरली G2S concentration is directly proportional to θ2 and so on. Now put these values in K1, K2, K3. So what do you get? So K1 is equal to θ1 upon P θ0. Then K2 is equal to θ2 upon P θ1. K3 is equal to θ3 upon P θ2 and so on. Now rearrange this equation. So you get θ1 is equal to K1 P θ0, θ2 is equal to K2 P θ1, θ3 is equal to K3 P θ2 and so on. जैसा आप जानते हैं θ1, θ2, θ3 वो मैंने फिर से टॉप में लिखा हुआ है, ठीक है. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फर्स्ट लेयर के लिए सबसे ज़्यादा रहता है. उसके बाद की जो लेयर्स है यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर क्या किया हमने मल्टी लेयर कंसिडर किया है. तो उसके बाद की जो लेयर्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नियरली इक्वली रहता है. इस वजह से K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं. सपोज दैट कांस्टेंट इज KL. तो यहाँ पर हम लिखेंगे θ1 is equal to K1 P θ0, θ2 is equal to now K2 is replaced by KL, so KL P θ1, θ3 is equal to KL P θ2 and so on. You know concentration of gas is directly proportional to pressure. अब देखिए अगर मैं सैचुरेटेड अगर गैस लेता हूँ तो उसको समझो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किया सैचुरेटेड प्रेशर से, दैट इज P0. अगर इक्वल टू करता हूँ तो कुछ तो भी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा. सपोज दैट कांस्टेंट इज KL.
अब यहाँ स्टैंडर्ड केस कंसीडर करेंगे, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू हो गया 1. So 1 is equal to KL into P0. So what is value of KL? It is nothing but 1 upon P0. So put this value of KL now in this equation. So we get theta 1 is equal to K1 P theta 0. Theta 2 is equal to 1 upon P0 into P theta 1, because you know KL is equal to 1 upon P0. थीटा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन P0 इंटू P इंटू थीटा 2. तो इस वजह से इस तरह से हमने क्या किया कि KL की जो वैल्यू है उसको पुट किया 1 अपॉन P0 करके. अब थीटा 1 क्या आएगा? यू नो थीटा 1 इज इक्वल टू K1 P थीटा 0. तो हमें क्या करना है कि थीटा 2 में थीटा 1 की वैल्यू जो है वो पुट करना है. सो यू गेट थीटा 2 इज इक्वल टू P अपॉन P0 इंटू K1 P थीटा 0, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा 1 की वैल्यू पुट किया. उसी तरह से K3 में आपको थीटा 2 की वैल्यू पुट करना है. तो ये वैल्यू आएगी थीटा 3 इज इक्वल टू P अपॉन P0, ठीक है, इन ब्रैकेट. नाउ थीटा 2 की वैल्यू यानी P अपॉन P0 इंटू K1 P थीटा 0. तो इस तरह से ये आएगा P अपॉन P0 स्क्वायर इंटू K1 P थीटा 0. नाउ टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कंसीडर किया है. तो टोटल सरफेस कैसे मिलेगा? सो थीटा टोटल इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1. अब हमें क्या करना है, जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू हमने डिराइव की है उसको हमें यहाँ पर पुट करना है. तो इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा. बाद में सब में से आप सबसे पहले थीटा 0 कॉमन निकालो. बाद में सेकंड टर्म से अगर आप देखते हैं तो उसमें K1 P जो है वो कांस्टेंट है. इस वजह से फिर क्या किया, K1 P कांस्टेंट लिया. तो इक्वेशन बना है थीटा 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस K1 P इन ब्रैकेट 1 प्लस P अपॉन P0 प्लस P अपॉन P0 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1. अब ये जो सीरीज है 1 प्लस P अपॉन P0 प्लस P अपॉन P0 स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैक्लूरियन सीरीज, और इसका सॉल्यूशन है 1 अपॉन 1 माइनस P अपॉन P0. तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा थीटा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस P अपॉन P0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस P अपॉन P0 प्लस K1 P. अब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखेंगे कि थीटा 1 ट्वाइस थीटा 2 थ्राइस थीटा 3, इस तरह से यहाँ पर एडसॉर्प्शन जो है वो हुआ है. इस वजह से हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू V टोटल अपॉन V मोनो इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस ट्वाइस थीटा 2 प्लस थ्राइस थीटा 3 एंड सो ऑन. तो अब यहाँ पर हमें फिर से थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यूज जो है उसको पुट करना है. और इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो आपको मिलेगा V टोटल अपॉन V मोनो इज इक्वल टू K1 P थीटा 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस P अपॉन P0 प्लस थ्राइस P अपॉन P0 स्क्वायर एंड सो ऑन. अब ये जो सीरीज है 1 प्लस ट्वाइस P अपॉन P0 प्लस थ्राइस P अपॉन P0 स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैक्लूरियन सीरीज, और इसका सॉल्यूशन है 1 अपॉन 1 माइनस P अपॉन P0 स्क्वायर. तो इसकी जो वैल्यू है फिर से हम वहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा V टोटल अपॉन V मोनो इज इक्वल टू K1 P थीटा 0 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस P अपॉन P0 स्क्वायर. इक्वेशन हमें मिला है, इसमें हम अभी थीटा 0 की वैल्यू पुट करेंगे. तो दिस इक्वेशन बिकम्स V टोटल अपॉन V मोनो इज इक्वल टू K1 P in bracket, now value of theta 0 1 minus P upon P0 divided by 1 minus P upon P0 plus K1P bracket complete into 1 upon 1 minus P upon P0 square. अब यहाँ पे 1 minus P upon P0 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा. बाद में आप जानते हैं P इसको लिख सकते हैं P0 इंटू P अपॉन P0. अब P0 जो है that is nothing but equal to 1 upon KL. So this equation becomes P is equal to 1 upon KL into P upon P0. तो ये जो वैल्यू है P की, ये आपको सिर्फ दो जगह पुट करनी है. 1 माइनस P अपॉन P0 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए. वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा. बाद में ये दो टर्म में से P अपॉन P0 कॉमन निकालिए.
तो इक्वेशन इस तरह से बनेगा। बाद में फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, यानी a प्लस बी अपॉन सी है तो उसको अपन a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। इस हिसाब से c इंटू पी अपॉन पी जीरो, ये जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट कीजिए और उस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन सी इंटू पी अपॉन पी जीरो प्लस सी माइनस 1 अपॉन सी। अब v मोनो जो है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए और इक्वेशन को थ्रू आउट p अपॉन पी जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें BET इक्वेशन मिल जाएगा। सो BET इक्वेशन इज p अपॉन VT इन ब्रैकेट पी जीरो माइनस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन c इंटू v मोनो प्लस c माइनस 1 p इंटू पी जीरो अपॉन c इंटू v मोनो।